السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، آج آپ کے سامنے دو دیوبندی مولویوں کے ریکارڈنگ لے کے آیا ہوں۔ آپ ریکارڈنگ مکمل سن کر آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ دیوبندی کتنے بڑے منافق ہیں۔ پہلا جو مولوی ہے پٹنہ بہار کا امارت شرعیہ نام کا ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کے ادارے میں کام کرتا ہے، اور امارت شرعیہ جو دیوبندیوں کا تنظیم ہے، دیوبندی عوام کے ساتھ ساتھ بریلوی عوام کو بھی دھوکہ دے کر لوٹنے کا کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ نے ہی مولویوں کو رضوی بنا کر پیش کیا۔ جب اس مولویوں کو میں رضوی کے بارے میں پوچھا کہ رضوی کیا ہوتا ہے، علماء دیوبند کے عقائد کفریہ ہے یا نہیں، تو یہ آئے بائے شائع کرنے لگا۔ دیکھیے، ایسے منافقت کر کے دیوبندیت پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور بریلوی عوام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ میں امارت شرعیہ کے منافق مولویوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، اگر تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں نیک ہے، تم اگر کسی زنا کے پیداوار نہیں ہو، ہم سے بات کرو۔ ہمارا نمبر دیکھو تھمبنیل پر دیا ہوا ہے۔ دیوبندی مولویوں کی جرت نہیں ہے ہم سے بات کرے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم، علماء دیوبند کو میں 10 منٹ کے اندر کافر و مرتد ثابت کروں گا۔ کوئی دیوبندی مولوی اگر ایک باپ کی اولاد ہے، ہمت ہے، جرت ہے، مجھے کال کر کے بات کر لے۔ یہ امارت شرعیہ ایک نمبر کا فراڈی ہے۔ بہاریوں سے میں کہتا ہوں، بہار کے سنی بھائیوں سے میں کہتا ہوں، تمام مسلمانوں سے میں درخواست کرتا ہوں، یہ امارت شرعیہ فراڈی تنظیم کا پوری طرح بائیکاٹ کرے، ان کا ناطقہ بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امارت شرعیہ خبیث تنظیم کو اللہ تعالیٰ غارت کرے، ان کو عذاب میں مبتلا کرے، آمین۔ اب دوسرا مولوی جو خود کو سیکولر کہہ رہا تھا، آپ دیکھیے اس کے سیکولرزم، یہ سب کو لے کے چلنے کی بات کر رہا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی پر تکفیر کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ نہیں دیتا، میں تکفیری مولوی نہیں ہوں اور میں سب کو لے کے چلتا ہوں۔ بعد میں اس کا بھنڈا پھٹا۔ دیکھیے یہ کس طرح بریلویوں کے بارے میں بدتمیزی اور بدزبانی کر رہا ہے، لعن طعن کر رہا ہے۔ تو ایسے ہوتے ہیں دیوبندی مولوی، دھوکہ دینے کے لیے پہلے کہتا ہے کہ میں سب کو لے کے چلتا ہوں، اور ان کے اندر بریلویوں کے تعلق سے اتنا زہر بھرا ہوا ہے، یہ ہر کسی سے اتحاد کرے گا، یہ ہندو سے، یہودیوں سے، عیسائی سے، قادیانی سے اتحاد کرے گا، لیکن بریلویوں کے بارے میں ان کے دل میں سب سے زیادہ زہر ہے۔ بریلویوں سے یہ دیوبندی خبیث کبھی بھی اتحاد نہیں کر سکتا۔ اگر کسی دیوبندی میں جرت ہے مجھے کال کرے، غلط کامنٹ کر کے خامخواہ وقت ضائع نہ کرے۔ اگر آپ اس آڈیو کے نیچے کوئی غلط کامنٹ کرو گے تو میں ڈیلیٹ کر دوں گا۔ بیکار کامنٹ کرنے کے بجائے آپ ڈائریکٹ مجھے کال کرو، مجھ سے بات کرو۔ سبھی سنی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ہمارا اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس آڈیو کو پہنچائیں۔ مولانا شمس حسن رضوی صاحب بول رہے ہیں؟ مولانا تو نہیں ہے، لیکن ہاں شمس حسن رضوی صاحب بول رہے ہیں۔ اچھا حضرت، میں ایسا ہی فون کیا آپ کو کہ امارت شرعیہ کا جو بینر ہے اس میں آپ کا نمبر دیکھا۔ جی، تو کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں اس وقت کرناٹکا میں ہوں۔ اچھا جی، تو یہ جو آپ رضوی ہیں اور علماء دیوبند کے ساتھ مل کر جو ہے پوسٹر میں آپ کا نمبر ہے، تو آپ حقیقت میں اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ برا نہیں ماننا حضرت، میں ذرا ایسا ہی جاننے کے لیے فون کیا۔ مطلب میرا نمبر آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ امارت شریعہ کے ٹیکنیکل ونگ ہے، یہاں پڑھائی ہوتی ہے، بس میں اسی سے جڑا ہوا ہوں۔ اچھا، آپ اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں؟ تعلق تو کیا ہے، اب مسلمان ہے، سب کو دیکھنا ہے یعنی اور آپ کیا۔ علماء دیوبند کو بھی آپ مسلمان سمجھتے ہیں؟ بالکل، فرقوں میں بٹنا تو نہیں چاہیے۔ تو فرقوں میں بٹنا تو نہیں چاہیے، لیکن جو غلط عقیدہ رکھا اور غلط عقیدہ کو پروموٹ کر رہا ہے تو وہ خود ہی بٹ رہا ہے، تو ہم اس کو روک تھوڑی سکتے۔ غلط عقیدہ، ہم تو غلط عقیدہ سے دور رہنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، سچوں کے اچھا ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہیں گے۔ تو غلط اچھا عقیدہ بنا کر جو لوگوں کو پھیلا رہا ہے غلط عقیدہ، اور اہل سنت سے لوگوں کو دور کر رہا ہے، فرقے میں تو وہ بٹ رہا ہے۔ اور اگر وہ بٹا، اس کے بارے میں ہم تو واضح کریں گے بھائی یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا کفر کر رہا ہے اور اسلام سے خارج ہے، ایسا بتائیں گے۔ اب علماء دیوبند کے جتنے کفریہ عقیدہ ہیں، اس عقیدہ کے ہوتے ہوئے آپ ان کو بالکل مسلمان مان رہے ہیں، اور پھر آپ رضوی رکھے اپنے نام کے آگے۔ بتائیے، اسی طرح امارت شرعیہ جو ہے اپنے ہی لوگوں کو
सिर्फ एक बरेलवी के नाम से आपका नाम लगा दिया ताकि सुन्नी लोग भी जुड़े रहे उनके साथ, और सुन्नियों को दिखाया जाए कि देखो ये रिजवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इमारत शरइया में है। हालांकि आप रिजवी नहीं है। जो रिजवी होगा आला हजरत के अकीदे से इत्तेफाक रखेगा। आला हजरत ने फरमाया उलमाए देवबंद जो किताबें लिखे हैं उन किताबों की वजह से उलमाए देवबंद काफिर है, और उनके फिक्र को जो नहीं मानेगा वो भी काफिर है। ये तो आला हजरत ने फरमाया। तो आप फिर किस लिहाज से रिजवी हैं? हाँ हजरत जरा बताएंगे रिजवी मतलब रिजवी आप क्यों है? आप कहना समझना क्या चाहता चाहते हूँ। हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं अगर इमारत शरइया आपने अपना जो तंजीम है उसके अंदर किसी बरेलवी को रखा है तो हकीकत में बरेलवी होना चाहिए ना। आप दिखा रहा है कि देखो हमने बरेलवी को भी अपने अंदर रखा है अपने तंजीम में, लेकिन आप बरेलवी नहीं है। अच्छा बरेलवी हाँ, तो वो होगा जो आला हजरत के अकीदे को मानेगा। यानी इमारत शरइया 100% फ्रॉड ही फ्रॉड चल रहा है उसके अंदर। अब कौन फ्रॉड है, कहाँ फ्रॉड है, वो तो मैं नहीं जानता भी। आप बताइए, आप तो रिजवी हैं, आप बताइए आला हजरत ने जो फरमाया, उलमाए देवबंद की किताब में जो बातें लिखी हुई आला हजरत के जमाने में जब लिखे गए तो उसी वक्त आला हजरत ने इन पर देखिए ऑब्जेक्शन मैं किया। आलिम दीन नहीं हूँ, हाँ, तो ठीक अगर है। इमारत शरइया अगर किसी को रखा है बरेलवी बनाकर तो उसको भी तो कम से कम आलिम रखना चाहिए था ताकि बरेलवियों के मसाइल से भी वाकिफ रहे। क्या स्कूल में, कॉलेज में आलिम दीन होना जरूरी है? तो इमारत शरइया का क्या मकसद है? इमारत शरिया में मैं नहीं हूँ। इमारत शरिया के टेक्निकल विंग जहाँ स्कूल की पढ़ाई होती है, कॉलेज की पढ़ाई होती है, मैं वहाँ हूँ। अच्छा इमारत शरिया सिर्फ टेक्निकल विंग है, बस वहाँ मैं हूँ। इमारत अच्छा, शरिया चलिए से आप मैं आलिम तो जरूरी नहीं अगर स्कूल में हाँ पढ़ा रहे, लेकिन बात यह है जी। आप अगर नाम के आगे रिजवी रखे हैं तो आपको तो कम से कम नहीं, आला हजरत से वाकिफ होना मुझे मेरा चाहिए। नाम बदल देना चाहिए, नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो नाम जो देखिए हकीकत में इंसान को धोखे में रखना तो गलत है ना। अगर अरे कोई हिंदू है, अगर हाँ हिंदू होकर हमारे सामने आए, अगर बोले भाई हाँ हिंदू हूँ, तो हम हाँ, बोले उसके हिसाब से हिंदू के हिसाब से हम बर्ताव करेंगे, उसके साथ बदतमीजी बद अखलाकी तो नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको मैंने समझेंगे भाई ये हिंदू आ रहा है। लेकिन हिंदू होकर अगर मुसलमान बनकर आएगा तो हमको अच्छा धोखा होगा ना। अच्छा, अगर अगर मतलब नाम में ही सब कुछ है ना, होगा धोखा, धोखा होगा या नहीं? नाम में सब कुछ नहीं है। आप फिर और हकीकत में क्या? आप है देवबंदी और आपके नाम के आगे रिजवी लिखकर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। रिजवी लोगों को कौन होता धोखा है? क्यों दिया जा रहा है भाई? रजा के मानने वालों को रिजवी कहते हैं। रिजवी किसको कहते हैं? बताइए रिजवी किसको आप कहते हैं? कौन? आप आपने क्या क्या मतलब नहीं, मुझे किस लिए ताज्जुब कॉल हुआ किस लिए आपका किया नंबर है? इमारत शरइया के बैनर में आपका नंबर, आपका नाम लिखा हुआ था, तो मुझे इमारत थोड़ा शरिया शक के हुआ। कौन से बैनर पे आपने मेरा नाम देख लिया है? आपका मैं पढ़ के बता रहा हूँ, देख लीजिए, पोस्टर है या बैनर है। वक्फ बोर्ड बचाओ, दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस जी, और वहाँ इमारत पर शरिया बिहार, उड़ीसा, जी झारखंड, जी फुलवारी जी शरीफ। जी जी, हाँ, इसमें बचाओ नीचे दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस नीचे जो आपका हुआ, नंबर। उसमें जो है वो हमारी ड्यूटी थी, तो हमने वहां पर मेरा नंबर है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कुछ ऐसा मुझे आपके बारे में और ज्यादा तहकीक की मुझे जरूरत नहीं। पता चला मुझे कि आप है देवबंदी, लेकिन आपको बरेलवी बनाकर आपको पेश करके कोई लोगों को बरे सिर्फ किसी ने मुझे बरेलवी क्यों बनाया, देवबंदी क्यों बनाया? भाई मैं मुसलमान हूँ। तो मुसलमान देखिए, हाँ बस हो मुसलमान गया। देखिए, कादियानी आपको भी बांटना मुसलमान, है, बटना है, जो करना है आप करिए ना भाई। शिया भी मुसलमान मुझे कहता है, आप कादियानी भी मुसलमान मुझे कहता है, तो मुझे फिर हम मुझे, आपको कादियानी मुझे समझे? आप इसमें शरीक मत करें। नहीं, आप तो खुदा के कादियानी, फिर वास्ते मुझे शरीक मत करें, समझा? कादियानी भी खुद को मुसलमान कहते हैं, तो फिर हम हाँ, कादियानी समझे आपको? आप क्या समझना चाहते हैं? आपका नहीं नहीं, प्रॉब्लम है। आप जैसा बर्ताव करेंगे हमारे उसमें हम गलत समझने में हमारी गलती नहीं होगी ना। जब आप अरे अपनी अपनी मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं करेंगे, जब आप अपना नजरिया जाहिर नहीं करेंगे, जब मुसलमान 73 गिरोह में बटे हैं और हुजूर की हदीस है जब क्यों बटे 73 गिरोह हैं बटेगी। बताइए, क्यों बटे हैं? क्यों बटे? जैसे क्यों आपके बटे जैसे हैं? लोग जो सहीहुल अकीदा, आपके जैसे लोगों ने बांट रखा है।
हमारे जैसे लोग तो वादे जाहिर कर रहे हैं, हम आपको बटो करके बोला। आपने बात किया ना, कादियानी और शिया और ये सुन्नी और बरेलवी, ये आपने बांटा है ना, जो गलत मैंने तो अकीदा बांटा नहीं है रखा, भैया। जब गलत अकीदा, ये देखिए आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन क्यों नहीं रहे? आप भी जरा खामोश होकर सुने। जब जिसने, मैं सुन ही तो रहा हूँ तब से। हाँ तो एक बात सुनिए, जब सहाबा इकराम के जमाने में अहले सुन्नत, तमाम सहाबा क्या थे? अहले सुन्नत व जमात थे। अहले सुन्नत से हटकर एक हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को मुखालिफिन पैदा हुए, अहले सुन्नत वाले रहे, अहले सुन्नत में ही रहे। जो गलत अकीदा वाले बनकर हजरत उस्मान के कातिल जाहिर हुए, वो लोग हजरत उस्मान के मुखालिफ दूसरा पार्टी बनाया। अब सहाबा इकराम ने उनकी गलतियां वाज़ेह किया कि देखो ये लोग अहले सुन्नत नहीं है, ये है खवारिज। तो अब खवारिज कहने वाले फिरके में बट रहे हैं, या जो खुद बन गए वो फिरके में बट रहे हैं। इसी तरह आप 100 साल पहले देखिए, जो अकायद और नजरियात, जो मैंने आप कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? आप मुझे क्यों आपने फोन किया? आप मैं कहना क्या आपको चाहते इसलिए हैं? फोन किया, आप हैं देवबंदी, आप देवबंदियों को मुसलमान समझते हैं, आला हजरत से आपका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आपके नाम के आगे रिजवी लिखा हुआ है। ये मुझे तकलीफ हुई, क्योंकि इससे सुन्नी लोग धोखा खाएंगे, आपको बरेलवी समझेंगे और आप है देवबंदी। तो इस तरह बहुत सारे फराडी लोग बरेलवी रिजवी जाहिर करते हैं, और ये इमारत शरइया 100% धोखा देने का काम किया है। ये फराडी जमात है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए ना कि आप केस कर दीजिए इमारत शरिया पर। हाँ, इमारत पोल खोलेंगे ना, पब्लिक जूता मारेगी। इमारत शरिया जो फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, इमारत शरिया वालों को जूता मारेगी। ठीक। हाँ, आप अगर बरेलवी है तो बरेलवी जाहिर करे, देवबंदी है देवबंदी जाहिर करे। हम देखिए, जब सारे मुसलमान एक थे, हजरत उस्मान के जमाने में एक थे, उस वक्त हम सिर्फ मुसलमान हैं। जब उस्मान के बाद, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के बाद जब शराबदी पैदा हुए, खारिजी पैदा हुए, अब सहाबा ने भी अपना नाम के आगे अहले सुन्नत लगाया। तो अब अहले सुन्नत जाहिर करना जरूरी हो गया, क्योंकि खारिजी भी मुसलमान कहते हैं, राबदी भी मुसलमान कहते हैं। समझ में आया जनाब? अभी आप जब हर 73 गिरोह में बटे हैं, हर गिरोह वाले मुसलमान कहते हैं, तो कुरान का मुनकिर भी खुद को मुसलमान कहते हैं, सहाबा को गाली देने वाले भी मुसलमान कहते हैं, आप भी मुसलमान कहते हैं। आपको सहाबा को गाली देने वाले का आपका फर्क होना जरूरी है ना? कौन सहाबा को गाली देता है? शिया लोग सहाबा को गाली देता है। शिया लोग क्या खुद को मुसलमान नहीं कहते? शिया राबजी, सीना पीटने वाले, वो तो हर सहाबा को काफिर कहते हैं। माज़अल्लाह 3 सहाबी के अलावा सब के सब काफिर हो गए थे, ऐसा उनका अकीदा है माज़अल्लाह। तो वो भी मुसलमान कहते हैं। तो मुसलमान कहने वाले जब इतनी कैटेगरी के हैं, तब अब सही मुसलमान कौन है, गलत मुसलमान कौन है, निशानदेही करना जरूरी है। आप निशानदेही करने वाला, आप निशानदेही कीजिए ना भाई, आप निशानदेही कीजिए। तो इसलिए आपका निशानदेही पहले हो गया। आप जो आपको निशानदेही करना है ना, आपको निशानदेही करना है, आप निशानदेही कीजिए। हाँ, तो आपके जैसे लोगों के बहुत सारे पोल खोलकर मैंने लोगों की ईमान अकीदे की हिफाजत की। ठीक है, आप पोल आपका पोल खुल गया आज, देखिए। कोई बात नहीं, पोल खोलिए। हाँ, आपके नंबर के साथ देखिए यूट्यूब पर आएगा आपका, ये आपसे जो गुफ्तगू हुई, ये गुफ्तगू में आपके नंबर के साथ इमारत शरइया के जो बैनर है, उस बैनर के साथ मैं यूट्यूब पे डालूंगा, और इन खबीसों का पोल खोलेंगे लोग। देवबंदी दुनिया का बदतरीन काफिर है, जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की। आप जमाना उतना बेवकूफ नहीं है, आप लोग उतना बेवकूफ नहीं है। आप रिजवी लिख के जो है देवबंदियों के साथ जुड़े हुए हैं। जी मुफ्ती साहब, थोड़ा वक्त है आपके पास? 1-2 सवाल पूछना था। हाँ बोलिए। अच्छा हजरत, ये बरेलवी और देवबंदी और अहले हदीस में क्या फर्क है, जरा थोड़ा वजाहत से बता दीजिए। बरेली, देवबंदी और हदीस में क्या फर्क है? हाँ, ये एक मसलक है, स्कूल ऑफ थॉट। हाँ, सोचने का एक नजरिया नहीं होता, स्कूल ऑफ थॉट जी। यही फर्क है। ये सब तो वाले सुन्नत वल जमात, एक दूसरे के पीछे नमाज होती है? हाँ, बरेलवी के पीछे देवबंदियों की, अहले हदीसों की नमाज होती है क्या? या फिर कोई अहले हदीस के पीछे देवबंदियों की नमाज होती है? देखिए, जहां तक भाई मेरी राय है, ठीक है, आप जो है शरीयत का मसला बताइए हजरत, आप मुफ्ती हैं। शरीयत का मसला बता रहे हैं। मैं देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, और हदीस के भी, और बरेलियों के पीछे भी पढ़ लेते हैं। यानी जिनका अकीदा शिरकिया ना हो, उसके पीछे नमाज हो जाती है।
یہ जैसा सब अहले सुन्नत वल जमात के देवबंदियों गिरोह में से। के देवबंदी जी एक फिरके का नाम है और नहीं, बरेलवी फिरका नहीं है। फिरका का मतलब आप समझिए, फिरका नहीं है। बुनियादी चीजों में किसी का इख्तलाफ नहीं है, फुरूई चीजों में इख्तलाफ है। इसको फिरक नहीं कहा जाता है, इसको स्कूल ऑफ थॉट करते हैं। जैसे हम्बली है, शाफई है, मालिकी है और हनफी है, इसको आप फिरका नहीं बोल सकते हैं, बल्कि इसको स्कूल ऑफ थॉट बोला जाता है। ओके, इसी तरह से ये स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ लोग मुतशद्दिद होते हैं, यानी कट्टरता जिनका अंदर ज्यादा होती है, वही वो नफरत फैलाने के लिए, जिस तरह से हिंदुओं में है भाई कट्टरता है कि नबी को गालियां देते हैं, क्या क्या करते हैं, इसी तरह से कट्टरता इन लोगों में आ गई है। वो लोग समझते नहीं है, उनका काम ही बस नफरत फैलाना है, ये करना है भाई। जहां भले नबी को कोई गालियां दे, कुछ करे, लेकिन आपस में ये लोग लड़के तो ये है वो है, तो इन सब चक्करों में मैं नहीं पड़ता हूँ, नहीं उनकी बात को मैं अहमियत देता हूँ। मुझे मैं थोड़ा फिरका के खिलाफ समझाइए हूँ। हजरत, मुझे बोलिए, थोड़ा समझाइए। आप जो कह रहे हैं बुनियादी फर्क नहीं है, पहले आप सिर्फ ये। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रही है तो बताइए। मेरा नाम जलालुद्दीन है, कहाँ से बोल रहे मैं हैं? कर्नाटक में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो हजरत मतलब ये जो किस आपने मसलक से आप बताया, ताल्लुक रखते हैं? वही तो मैं समझना चाहता हूँ आलिम से। मैं, आप मुफ्ती तो हैं मैंने तो आप आपसे बताया मैं, ना, आप किसी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। तो मैं जो है ऐसे तो बरेलवी हूँ मैं, आपको आपसे देखिए जरा एक समझना आदमी, चाहिए। देखिए प्लीज, एक आदमी होता है कि जो समझना चाहता है, एक आदमी है वो कट्टर है, वो आया है परेशान करने के लिए। इस तरह से बहुत सारे बरेली मेरे पास फोन करते हैं। तो मैं माजरत आपसे चाहूंगा कि अगर आप मतलब कट्टर किस्म के हैं या आप भी तकफीरी सोच के हैं, तो मैं खुदा के लिए फॉर गॉड सेक आपसे माजरत करूंगा कि भाई मैं सब इसमें नहीं पढ़ता हूँ। मैं है सबको लेकर चलने वाला इंसान हूँ। मैं इत्तेहाद की बात करता हूँ, मुआफ़क़त की, भाईचारे की मैं बात करता हूँ, मैं हिंदुओं से भाईचारे की बात करता हूँ भाई, जिस तरह के हालात हैं। तो अपने जो मुसलमान कलमा पढ़ने वाले हैं उनसे हम बुनियादी चीजों के इख्तलाफ की वजह से हम काफिर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो ठीक है, खुदा के घर में मैं बैठा हूँ। आपकी सोच बहुत वसी है जनाब। मैंने आपकी एक किताब, मैंने, आप देवबंदी मकतबा फिक्र से हैं, तो मैंने एक तक़वियतुल ईमान नाम की किताब है, जिस मैं किताब को देखिए भाई, मैंने, मैं बुनियादी तौर पर अगर बताऊं कि मैं ये मतलब नहीं मानता हूं कि मैं यही हूं तो इसमें हूं। मैं देखो एक सेकुलर मतलब मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, नबी पर ईमान लाता हूँ, नबी के सबसे ज्यादा ताजीम करता हूँ, कुरान और हदीस की बात लोगों को बताता हूँ, फिरका की बात मैं शेयर नहीं करता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए, आपको सिर्फ वहाँ किसी फिरके की बात नहीं मिलेगी, कुरान की अच्छा तो तफसीर, फिर कुरान हजरत हदीस ये पर। हदीस है ना, आप कुरान हदीस तो बहुत बोले, तो एक हदीस जी पर आप अमल करते हैं या नहीं, वो मैं हाँ जरा बताइए, जानना चाहता हूँ। जिस हदीस में बोलिए। है कि मेरी उम्मत 73 फिरके में बटेगी और एक जी जन्नती जी होगा, बाकी 72 जहन्नमी होगा, तो फिर इस हदीस का क्या मतलब है? आप सेकुलर है तो फिर हर फिरके को आप मानते हैं, तो फिर नबी की ये हदीस नहीं मानते आप? तो मैं आपको बताया ना कि फिरका अलग है मेरे भाई, मेरे फिरका या दोस्त, कौन मेरे है डियर। फिरका ये हजरत? मसलक स्कूल ऑफ थॉट है। आप हनफी शाफई को अलग अलग फिरका मानेंगे? यस नो? अच्छा, हनफी शाफी में अकीदे का इख्तिलाफ नहीं, मगर ये तीनों इसमें भी चारों अकीदे का इख्तलाफ, अकीदत कई तरह का होता है, आप जानते हैं ना। अकीदे का इख्तिलाफ है इसमें। अकीदा इसमें तो कई खुद तरह का होता है, एक है बुनियादी दे- अकीदा। सुनो मेरे देवबंदी भाई, ही, अब सुनिए हजरत इत्मीनान से, आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं, मेरी बात बोलिए कंप्लीट बोलिए। होने नहीं दे रहे हैं। मैं समझना चाहता हूँ, मैं आपको, मैं ना तकफीरी हूँ ना मुतशद्दिद हूँ, मैं सिर्फ मैं आपके जैसा, आप जैसा रोशन इस ख्याल हदीस का बोलते मतलब हैं, मैं आपको समझा दूं, पहले मैं आप ही समझा से पूछ दीजिए। लेता हूँ। देखिए जो हदीस आपने पढ़ी है तो फिरके के मतलब हवाले से, उस हदीस को सबसे पहले हम कुरान से परखते हैं, ठीक है। हम्म। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी फिर। जी कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, ठीक है भाई। जी सबसे बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने कहा, यानी अभी तक दुनिया में जितनी उम्मतें आई हैं, वो बनी इसराइल हो, जितनी भी उम्मतें आप ले लीजिए, सब में बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को कहा ना। जी। जरा सुनिएगा, पॉइंट टू बी नोटिस। अब बताइए, जब ये कुरानी आयत है जो नस्से सरी है, और ये हदीस लीजिए जो खबर वाहिद है, ठीक है। मैं देखिएगा, मैं बहुत पॉइंटेड बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं हदीस के मतन को भी देखता हूँ और उसकी सनद को भी देखता हूँ। कोई हदीस अगर सनदन एतबार से सही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतन भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको बहुत बारीकी बात बता रहा हूँ। तो इस कुरान की आयत में तो है कि अल्लाह ताला ने कहा कि बेहतरीन उम्मत उम्मत मुस्लिमा है, लेकिन इस हदीस से पता ये चल रहा है कि भाई ये उम्मत सबसे घटिया उम्मत है, यानी बनी इसराइल यहूदियों से भी घटिया है। क्यों? इसलिए कि यहूदियों में 72 फिरके हुए, इसमें 73 फिरके होंगे। तो जब जिसमें 73 फिरका होगा वो तो घटिया हो जाएगा ना। जबकि अल्लाह क्या कह रहा है कि भाई ये तो बेहतरीन उम्मत है। अब आप बताइए कि बेहतरीन उम्मत कैसे होगी?
جو آپ کی رائے کے مطابق آپ نے بتایا، یہ حدیث میں محدثین نے کوئی اس طرح کی باتیں کہی، اس حدیث کا تو کسی محدث نے انکار نہیں کیا۔ ارے میرے میں نے دوست، میرے سنی ہے، بھائی، جو میں آپ پہلے بولنے بتا رہا نہیں ہوں دے آپ کو حضرت، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ سنو مجھے بتائیے۔ یہ بات، آپ کی بات مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ نہیں آپ نے آئی؟ جو کہا کہ یہ حدیث مانا جائے تو سب سے گھٹیا امت ساتھ، یہ حدیث میں قرآن کی آیات کے خلاف ہے ہی نہیں۔ قرآن کی آیات کا مطلب ہی یہ ہے، اس امت کو دعوت دینے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے اس امت کو اللہ نے بھیجا ہے۔ دوسری امت کا، نبی کا کام تھا نیک بات کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، نبی کا کام تھا، اور اس امت کو بھی اللہ نے وہی کام دیا ہے جو پچھلی نبی انبیاء اکرام کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے امت بہترین امت ہے، نہ کہ اس امت میں جو اختلاف ہوگا ایک دو حدیثیں نہیں، یہ حدیثیں نا تقریباً 15-20 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جو میری امت 73 فرقے میں بٹے گی، اور اس میں ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ جو ایک فرقہ جنتی کیوں ہوگا، اس میں اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، اس میں الافادۃ الیومیہ میں، کہ جو باقی 72 فرقے جہنم میں جائے گا، اس فرقے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ عقائد کے اختلاف کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، اعمال کے اختلاف کی وجہ سے نہیں۔ اور جو آپ نے کہا تھا کہ شافعی اور حنفی میں جو اختلاف ہے وہ فروعی اختلاف ہے، اسی طرح جو اہل حدیث کا، دیوبندی کا، بریلی کا اختلاف ہے، یہ اختلاف عقیدے کا اختلاف ہے۔ خود ان کے جو بڑے پیر ہے دیوبندیوں کا، ذوالفقار نقشبندی، اس کا بیان، ان کا بیان موجود ہے، انہوں نے کہا کہ بریلویوں کے ساتھ ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے۔ اور آپ نے بھی کہا کہ شرکیہ نہ ہو۔ آپ جو بریلویوں کے بڑے سے بڑے علماء، اعلی حضرت سے لے کر آج کے جو علماء ہیں، سب اس بات پر متفق ہے کہ قبر والے سے مدد مانگنا جائز ہے، اور آپ اس کو شرکیہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کوئی عام بریلوی کو شرکیہ نہیں کہہ رہے ہیں، بریلوی کے ہر عالم کو اور ان کے نظریہ کو، بنیادی نظریہ کو شرکیہ کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تکفیری نہیں ہوں، میں بہت سیکولر ہوں۔ اسلام میں تو سیکولرزم ہے ہی نہیں، اسلام میں حق نہ حق کھل کر واضح کرنا ہے اور حق کے ساتھ جڑنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن کی آیت میں ہے۔ اچھا، ہو تو گئی، پھر کمپلیٹ ہو گئی بات؟ بولیے آپ۔ سب سے پہلی بات، هو سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یا جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان نام رکھا ہے، قرآنی نام ہے مسلمان۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر فرقہ والے، یعنی ہر مسلک والے یہ دعویٰ کرتے ہیں وہی صحیح ہے اور باقی سب کے سب غلط ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ میں کل قیامت کے دن بروز حشر اپنی امت کی اکثریت پر فخر کروں گا۔ اس حدیث کا آپ مطلب سمجھا دیجئے، جبکہ صرف بریلوی کے اعتبار سے بریلوی جنت میں جائیں گے، دیوبندی کا کہنا یہ ہے کہ صرف وہ جائیں گے، اہل حدیث کا کہنا ہے کہ یہ جائیں گے، شیعہ جو ہے مٹھی بھر وہ کہتے ہیں کہ شیعہ ہی ہے، شیعہ میں بھی 12-13 فرقے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں۔ شیعہ تو حضرت ابو بکر صدیق کو گالیا، حضرت عمر فاروق کو گالیا، وہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دلیل ہے، وہ تو عمر فاروق کو چور کہتے ہیں۔ ابھی ایک حسن اللہ یاری ہے، وہ آئے دن یوٹیوب پر حضرت امی عائشہ کو، عثمان غنی کو سب چور گالی دیتا ہے، حدیث دکھاتا ہے۔ تو کیا ان سب کی بات مان لی جائے گی؟ کیا وہ سب کی حدیث، وہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو سند کے اعتبار سے صحیح ہے، محدثین نے صحیح کہا ہے۔ تو آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی، یہ اسلام کی بنیادی چیزوں کے خلاف ہے۔ نبی کی اکثریت پر فخر کریں گے، یہاں اکثریت کیا ہے؟ یا تو مٹھی بھر بریلوی ہیں، یا مٹھی بھر دیوبندی ہیں، مٹھی بھر اہل حدیث ہے، اور صرف جنت میں ہی لوگ جائیں گے، باقی سب کے سب جو کر رہے ہیں وہ سب کے سب مطلب مخلد فی النار ہوں گے، جہنم میں جلیں گے، وہ کافر کی طرح ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کتنی ایک چھوٹی سوچ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تھے تمام لوگوں کو مطلب مسلمان بنانے کے لیے۔ قرآن میں باقی ان نفس کا کیا ہے نبی، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، اس طرح کی آیت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور مشن تھا کہ سارے لوگ کیسے مشرف بہ اسلام ہو جائے، اسلام کی آغوش تربیت میں آ جائیں۔ لیکن فرقوں نے کیا کیا ہے، ان مسلک کے کٹر پنتھی لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ایک دوسرے پر تکفیری فتوے لگائے، ایک دوسرے کو کافر بنایا، اور اسلام کہ جو نبی کا مشن تھا اس کی دھجیہ اڑا دیا، نبی کے مشن کو بالکل لات مار دیا۔ اور ہر فرقے والے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جو فرقے کرتے ہیں، جو اس طرح تکفیری سوچ والے ہیں، آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے،
हाँ, इस तरह की बेशुमार आयत है मेरे भाइयों। तो आपकी बात जो है ये तकफीरी सोच को दर्शाती है, और मैं ऐसी सोच को मौलाना जुल्फकार साहब कहें या कोई भी कहे, मैं उन सबको रद्दी के टोकरे में डालता हूँ। मेरा काम नहीं है किसी पर तकफीर का फतवा लगाना। बुखारी की हदीस है, तो हम किसी पर अगर कुफ्र का फतवा लगाते हैं वो काफिर नहीं है तो हम काफिर हो जाएंगे। मैं आपको काफिर नहीं मानता हूँ, मैं किसी बरेलवी को काफिर नहीं मानता हूँ। मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं किसी बरेलवी को काफिर मानूं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। आपको मुझे काफिर मानना है, वो आपका हक है, आप माने, आप उसको क़यामत के दिन साबित करेंगे। सुनिए जनाब, ये जो आपने कहा कि मुट्ठी भर बरेलवी, मुट्ठी भर देवबंदी, मैंने सबके बारे में कहा, ये मत कहिए कि मैं सिर्फ बरेलवी बोला हूं। मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ, सबके बारे में कहना जो सही है, सही को भी गलत कहना, गलत को भी गलत कहना, सबको एक कैटेगरी में डालना ही जुल्म है। और बात आप मुकम्मल नहीं कर सकते, ये बोलो कि आप ये अमल गलत है। हजरत आप बहुत लंबी बात की है और बहुत सारे हदीस बताए। मैं जरा आपकी हदीस से मैंने क्या समझा, आप जो हदीस है और आया बोल लीजिए थोड़ा, मैंने जो समझा आप बीच में फोन कर दिए। हाँ, जो आप वीडियो बाद में भी अपलोड कीजिए, बहुत अच्छी बातें हो रही है। आपको जो आपने जो बताया अभी कि मुट्ठी भर सारे फिरकों को बताया, सबको मैं मिसाल देकर बोला। नहीं, आप बीच में ना बोले, मुकम्मल बात होने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बरेलियों को मैं टारगेट किया, मैं वो तो नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको, आप जो कहे मुझे मुकम्मल बोलने दें, मुकम्मल बोलने तक आप जरा खामोश रहे। बात यह है, आपने जब सबको मुट्ठी भर कहा, बरेलवी 100 साल पहले जो अशरफ अली थानवी ने जब गुस्ताखी किए और गुस्ताखी की बुनियाद पे आला हजरत ने फतवा दिया कि अशरफ अली थानवी ये गुस्ताख है, काफिर है। आप जितने देवबंदी अवाम उनसे जुड़े हुए हैं, वो सब तो उनका अकीदा अशरफ अली थानवी क्या है क्या नहीं है जानता ही नहीं, सिर्फ देवबंदियों के पीछे लगे हुए हैं। तो उनको टोपी दाढ़ी देखकर उनको मौलाना समझ के उनके साथ लगे हुए हैं। 99% सुनिए, नहीं सब काफिर नहीं है। मैं आपको गौर से, आप गौर से समझे, जरा इत्मीनान से समझे, तो जल्दबाजी करेंगे समझ में नहीं आएगा। मुट्ठी भर सिर्फ देवबंदी है, अहले हदीस है, शिया कादियानी हर फिरके मुट्ठी भर है। आज भी 80% बरेलवी है पूरे मुसलमानों में, कलमा पढ़ने वालों में। क्यों बरेलवी 80%? जो देवबंदियों का अकीदा है, मिसाल के तौर पर अल्लाह झूठ बोल सकता है, देवबंदियों का अकीदा है। इस अकीदा को लेकर 1000 खौफ है आपके दिल में, तो थोड़ी बहुत मतलब अल्लाह से मैं किताब दिखा दूं अभी, किताब दिखा दूं अभी आपको। मतलब ऐसी बात को मैं, ऐसी बात अगर किताब में है, जूते के नोक पे आप रशीद अहमद गंगोही को रखिए ना। रशीद अहमद गंगोही वो बात कही नहीं भाई, तो वही बात हो गई ना कि शिया हज़रत उमर फारूक को काफिर कहते हैं, वो अपनी सोच के एतबार से। ये बात मत करिए, जो झूठी बात आप मंसूब कर रहे हैं की तरफ। देखो मैं फिरका का नहीं मानता हूँ, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल 100% झूठ है यार। लानतुल्लाह, व्हाट्सएप नहीं भाई, किताबें नहीं, उसको हम रद्दी के टोकरे में रखते हैं। 100 मरतबा उसका जवाब दिया जा चुका है और आप उसी पे अड़े हुए हैं कि देवबंदियों का अकीदा अल्लाह झूठ बोलता है। मतलब कितनी भोदी बात है यार, कितनी शर्म वाली बात है। लिखी हुई है तो अल्लाह अकबर। इस एक मिनट सुनिए, लेट मी कंप्लीट प्लीज, मेरी बात सुनिए। देखो नफरत में इंसान को इतना आगे नहीं मतलब जाना चाहिए कि वो कुछ भी लागे झूठ बोले। यार कौन बोला आपको देवबंदियों का अकीदा अल्लाह झूठ बोलता है? खुदा की कसम खाकर अल्लाह के घर में बोल रहा हूँ, ये हमारा अकीदा नहीं है। अगर ये हमारा अकीदा होगा तो अल्लाह की मार हो हम पर, अल्लाह का गजब हो, अल्लाह का कहर हो। और अगर कोई झूठ बोल रहा है हम पर तो उस पर अल्लाह का कहर हो। बोलिए आप आमीन, बोलिए आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, अगर हमारा अकीदा नहीं है और आप कह रहे हैं कि मेरा अकीदा है, ठीक है, तो अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप पर खुदा का कहर होगा। आमीन बोल दीजिए। ये जो आप कह रहे हैं मेरा अकीदा तो नहीं है कि अल्लाह झूठ बोलता है। एक लफ्ज भी मुकम्मल बोलने नहीं दे रहा है। मेरा आप जो मुझ पर झूठ बोलने लगते हैं, सुनिए एक मिनट प्लीज। इस तरह बात करने आलिमाना अंदाज नहीं है आपकी, जो बात करने जल्दबाजी है। आप झूठ, मैं सोचा बहुत बड़े आलिम से बात कर रहा हूँ। अरे भाई तो आप झूठ जो बोलेंगे तो बीच में मैं तो काटूंगा ना, झूठ बोलेंगे तो। बात करने का जैसा मेरा अकीदा नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा वहाँ। नहीं, वहाँ आप याद रखेंगे। उसूल बात करने का उसूल ये है, आप मतलब झूठ बोलते चले जाओ वहां में। आप 4 मिनट बोले, 4 मिनट आपने बोला, 4 मिनट में मैंने आपकी बातों में से जो बातें याद रखा। आप ये जो झूठ बोल रहे हैं, इस झूठ बोलने की इजाजत किसने आपको दी है? आपको, आप एक लफ्ज में मुकम्मल बोलने नहीं दे रहे हैं। इसका पहले जवाब दीजिए। नहीं, आपकी बात मुकम्मल तो 1-2 मिनट मेरी मुकम्मल। अच्छा, झूठ बोलिए, ठीक है, चलिए बोलिए। बात ये है, जब आप बोल रहे हैं 4 मिनट, बोलिए भी मत बोलिए ना, चुप रहिए, थोड़ा सुनिए। अच्छा चलो, जब आपने 4 मिनट आपने बोला तो आपकी सारी बातें मैंने सुन लिया। आपकी बहुत सारी गलत बातें, मेरी नजर में आपकी बातें गलत थी, लेकिन मैंने पूरा सुना।
तब जाके मैं बोलने लगा। अब मेरी भी कौन सी बात में बात मेरी अगर गलत है यार? फिर जो बात आपको मैंने कही कुरान हदीस के निचोड़ मैंने बात करी वो गलत हो निचोड़ गई। आप मैं भी कुरान हदीस की निचोड़ बता रहा हूँ, आप गलत बीच में ठहरा रहे हैं। बात यह है, जब आप मेरी बात मुकम्मल सुनेंगे, उसके अंदर आपने मैं कौन सा झूठ बोला कौन सा गलत बोला आप याद रखेंगे। फिर चलिए जब ठीक आपको है। बोलने का मौका मिलेगा तब आप मेरे सारे झूठ का एक्सपोज करेंगे। यह तरीका होता है। अभी मैंने जब बात शुरू किया, बात का पॉइंट क्या था कि मुट्ठी भर कौन है वो मैं साबित करना नहीं, उसके साबित करने में मैं जब मिसाल दिया फिर उसी मिसाल पे आप गए, जो मुट्ठी भर कौन है वो बात छूट गई। वो बात छूटना नहीं, बात असल में मैं कहना चाह रहा था, आपका दावा है मुट्ठी भर बरेलवी, मुट्ठी भर देवबंदी, मुट्ठी भर अहले हदीस है, और ये बात झूठ है। आज भी दुनिया में 80% बरेलवी है, बाकी 20% में शिया, कादियानी, अहले हदीस, देवबंदी सब है। क्यों है? जो देवबंदियों का अकीदा है, आप इनकार करें या आप इकरार करें, किताब में जो लिखा हुआ है, किताब मेरे पास मौजूद है, बराहीन कातिया में है, फतवा रशीदिया में है। अल्लाह झूठ बोल सकता है, बोल सकता है, ये बात लिखा हुआ है। तो अभी आपने जो ये अकीदा लेकर आवाम के सामने जाएंगे, आपके 99% आवाम आपको ठुकराएगा। सिर्फ 1% देवबंदी जो देवबंदी कुफरी अकीदा वाला देवबंदी 1% मिलेगा दुनिया में। इसी तरह अहले हदीसों की जो कुफरी अकीदा है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, ये अकीदा अहले हदीस के आवाम 99% आवाम रिजेक्ट करेगी, 1% अहले हदीस बचेगा। शिया 5-6% दुनिया में, पूरे दुनिया में शिया 5-6% है, कादियानी थोड़े हैं, नीचरी, दहरिया, सब जितने हैं सब मिला के 20% जो कलमा पढ़ने वाले कुफर के दलदल में फंसे हुए हैं, उनको हम पक्का काफिर मानते हैं। बाकी अवामुन नास, चाहे देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ रहा है, वो गलत फहमी धोखे में है, वो धोखे में है, काफिर नहीं है, गुमराह है, धोखे में है। तो आज भी 80%, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के कसरत पर फख्र करेंगे। और उम्मत जो पहले 100 साल पहले बरेलवी थे, 150 साल पहले जब अशरफ अली थानवी और रशीद गंगोही वो लोग गुस्ताखी करने से पहले किस जमात में थे? वो इसी जमात में, अहले सुन्नत व जमात में। और उस वक्त अहले सुन्नत के बड़े उलमा कौन थे? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, मुजद्दिद अल्फसानी, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, उन तमाम बुजुर्गान दीन जो मामूलात करते थे, वो सारे मामूलात आज हम बरेलवी कर रहे हैं। और वो मामूलात छोड़कर वो अहले सुन्नत से जुदा होकर जो फिरकों में बटे, वो देवबंदी बटे, हम बटे नहीं, हम जहाँ थे वही है। इस वजह से सवाद आजम हम है। आप जो रोशन ख्याली का जो आप जाहिर कर रहे हैं ना, वो सिर्फ रोशन ख्याली नहीं है, आप उलमाए देवबंद के कुफर पर, गलतियों पर पर्दा डालना चाह रहे हैं। आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? यानी आपकी नजर में मैं जहन्नमी हूँ? जहन्नमी आपको मैं नहीं कहा, मैंने आपकी गलतियां दोहराया, मैं जहन्नमी तो कहूंगा मतलब मैं काफिर हूँ। तो आप जो बताइए, अल्लाह झूठ बोल सकते हैं? किताब में लिखा हुआ है। बिल्कुल नहीं। अब जिसने लिखा उसको आप मुसलमान मानते हैं, उसको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लिखा ही नहीं है। अच्छा भाई, इबारत पढ़ता हूँ, सुनिए। नहीं, आप समझे नहीं है ना, आप उसमें लिखा ही नहीं है, काट छाट के आप बोलिए मत बीच में। हाँ, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, बीच में मत बोलिए, आप बोलिए, आप मुझे बोलने दीजिए। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस धर्म पर एतराज किया गया है वो मजहब इस्लाम है। खुदा की कसम खाकर बोल रहा हूँ, मजहब इस्लाम पर जितना एतराज किया है उतना किसी और धर्म पर। आज नास्तिक, एक्स मुस्लिम, नबी की सीरत पर, नबी के कैरेक्टर पर साफ धजिया उड़ा रहे हैं आके यूट्यूब पर। कभी इस फील्ड में काम करेंगे? आप नहीं करते हैं, क्योंकि बरेली तो इस फील्ड के माहिर हो ही नहीं है। उनको तो बस भाई काफिर बनाना है, दूसरे जो मुसलमान है उनको काफिर बनाना है। वो एक्स मुस्लिम से मुनाजरा नहीं करेंगे, वो गैर मुस्लिम से डिबेट नहीं करेंगे, उनके पास वो नॉलेज ही नहीं है। बस वो जो मुसलमान है बेचारा, जो सौम सलात के पाबंद हैं, जो खुदा की दीन को फैला रहे हैं, उन पर काफिर का फतवा लगाएंगे। अपने ही अगर से बुत परस्ती करेंगे, जाके कब्र पूजेंगे और शेख अब्दुल कादिर जिलानी को खुदा बना देंगे। कोई आके बयान करता है अमीनुल कादरी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में थे, वो उनके माँ के पास एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए, गलत नजर डाला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी पेट से निकले, शेर बन के फाड़ दिया। कोई कहता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास चांद नौजवान की शक्ल में आता और उनसे इजाजत चाहता। ये है बरेलियों का दीन। हाँ, कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुदा हो गए, अहमद रेजा को खुदा बना लिया, कुरान हदीस को एक तरफ छोड़ दिया। अहमद रेजा ने जो कुछ किसी को काफिर कह दिया अपनी सोच के एतबार से, अपने नजरिया के एतबार से। तो अहमद रेजा ऐसा लगता है कि वो अहमद रेजा क्या है भाई? खुदा है। अहमद रेजा वो नबी है। नबी की बात की तरह अहमद रेजा की बात को मानने वाले खुद काफिर हैं। वो दूसरों को काफिर क्या कहते हैं? मौलाना अहमद रेजा जस्ट ह्यूमन, एक इंसान थे, उनसे गलत
गलती हो सकती है, उन्होंने जो फतवा दिया उसका अंदर गलती का शुबा है, वो उनकी सोच थी, लेकिन उनकी बात को आप इतना कुरान और हदीस की तरह मानोगे? यार ये मुसलमान है, ये नबी ने आपको तालीमात दी है, और आप आके यहाँ लेक्चर दे रहे हो, आप आके यहाँ कह रहे हो कि मुट्ठी भर जो है और लोग हैं, आप 80% हो। बिल्कुल झूठ बात है। बरेलवी सब के सब ईमान कबूल कर रहे हैं, मतलब वो अपने शिर्क और बिदआत और खुराफात के दलदल से निकलकर कोई अहले हदीस की जमात में जा रहा है और कोई देवबंदियों की जमात में जा रहा है कि यहाँ तौहीद है, यहाँ एक अल्लाह की इबादत की जाती है, किसी पीर को और किसी बाबा को यहाँ पूजा नहीं जाता है, और उससे इस्तेआनत जैसे अल्लाह से मांगी जाती है वैसे देवबंदी के अंदर नहीं किया जाता है। अहमद रेजा खान ने जो कुछ किया है वो तकफीरी सोच के इंसान थे, उन्होंने तकफीरी को बढ़ावा दिया, उन्होंने कोई इस्लाम की खिदमत नहीं करी है, उन्होंने मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, नबी के मिशन के खिलाफ उन्होंने काम किया है। नबी के दुश्मन अगर कहा जाए तो अहमद रेजा खान नबी के दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि नबी के मिशन के खिलाफ काम करने वाला नबी का दुश्मन हो सकता है, नबी का कभी वफादार नहीं हो सकता है। नबी का मिशन था कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम आए, नबी का मिशन था पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का डंका बजे, ये नबी का मिशन था। लेकिन अहमद रेजा जैसे एक तकफीरी सोच वाला इंसान उठता है और अपना फिरका बनाने के लिए वो लोगों की बात न समझने की वजह से कुफ्र का फतवा लगाता है। आज एक्स मुस्लिम भी तो नबी को बुरा भला कहते हैं, एक्स मुस्लिम तो नबी को गाली कहते हैं, एक्स मुस्लिम तो बुखारी का हदीस कोट करके नबी को फहाश और कैसे कैसे लफ्ज इजाद करते हैं। तो क्या हम एक्स मुस्लिम की सोच को मान लेंगे? हम एक्स मुस्लिम जो आयत को काट छांट के आगे पीछे करते हैं, वो भी तो कुरान से दिखाते हैं कि देखो कुरान वायलेंस करता है, कुरान जो है आतंकवादी को बढ़ावा देता है। ये न्यूज चैनल पर नहीं चलता है, ये एक्स मुस्लिम बातें नहीं करते हैं, वो भी तो आयत काट छाट के और हदीस कोट करते हैं, और आप भी वही कर रहे हैं कि देखो रशीद अहमद गंगोई ने झूठ लिख दिया, ये लिख दिया, ये क्या होता है भाई? आपका जो मैंने जो बातें कही उस बात पर आपने एक लफ्ज नहीं बोला, आप सिर्फ अपनी बातें नहीं, ये आपकी बात झूठ है जो आप बोल रहे हैं 80% बरेलवी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। बरेलवी जो है मुट्ठी नमक में आटे के बराबर है, उनका वजूद ही नहीं है, उनका वजूद खत्म हो रहा है भाई। बरेलवी जो है वो आप कबर पुजारी सारे लोग सुन के जा रहे हैं। सामीन हजरात, इस खबीस का नंबर दिया हुआ है, जो नंबर आप थंबनेल पे देख रहे हैं इसी खबीस का नंबर है, आप कॉल करके मुहासबा कर लीजिए। यह खबीस मुझे बोलने ही नहीं दे रहा था, इसके बाद तकरीबन 15 मिनट ये सिर्फ बकवास करता जा रहा था, सुन्नियों को काफिर, मुशरिक, बिदती, जहन्नमी, काफिर, मुर्तद सब कुछ कह रहा था। शुरू में इसके रिकॉर्डिंग पीछे करके आप दोबारा सुन लीजिए। शुरू में इसने कहा था कि मैं सेकुलर जहन का आदमी हूँ, मैं सबको लेके चलने वाला हूँ, मैं किसी की तकफीर नहीं करता, मैं बरेलवियों को मुसलमान मानता हूँ, बरेलवियों के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ। ये सारी बातें इसने पहले कही, और यही है मुनाफिकत। देवबंदी ऐसे ही मुनाफिक होते हैं, देवबंदी दोगला होते हैं, इनकी कोई बात का भरोसा नहीं है, कब बदल जाए, कब किस तरह बात करने लगे, देवबंदियों का कोई भरोसा नहीं। और मोमिन की ज़ुबान पक्की होती है, मोमिन जो बोलता है सोच के बोलता है, उस पर कायम रहता है। यह खबीस देखिए किस तरह की बदजुबानी और बकवास कर रहा था। और मैंने जो दावा किया कि आज भी दुनिया में जितने भी कलमा पढ़ने वाले हैं सब में 80% बरेलवी हैं, आज भी सवाद आज़म बरेलवी है। क्यों? हमारा अक़ीदा अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, देवबंदी उलमा का अक़ीदा अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो अब 1000 आदमी का मजमा हो आवाम का, मैं अपने अक़ीदा डंके के चोट पे खुलकर बयान कर सकता हूँ, सारे लोग हमारे सपोर्ट करेंगे। तो जो हमारे अक़ीदे में सपोर्ट करेंगे वो बरेलवी है, और जो हमारे अक़ीदे का सपोर्ट नहीं करेंगे वो देवबंदी है। तो अल्लाह झूठ बोल सकता है इस अक़ीदे का। आवाम के सामने अगर देवबंदी बोलेगा तो जूता मारेगा आवाम, देवबंदी उलमा को आवाम जूते मारेंगे। इस वजह से देवबंदी दुनिया में से 2% देवबंदी है जो कुफरी अक़ीदा जानते हुए देवबंदी उलमा को मानते हैं। ऐसे सिर्फ दुनिया में 2% कलमा पढ़ने वाले देवबंदी काफिर है, और बाकी 98% जो अहले सुन्नत कहते हैं, जो हनफी कहते हैं, शाफी कहते हैं, मालिकी, हम्बली कहते हैं, किसी का भी अक़ीदा नहीं है अल्लाह झूठ बोल सकता है। देवबंदी किताब में लिखा है नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को है, अशरफ अली थानवी, और उस अशरफ अली थानवी खबीस का जो तायद करता है, ऐसे 1% देवबंदी दुनिया में मिलेगा, बाकी 99% अशरफ अली थानवी खबीस का रिजेक्ट करेगा। इस्माइल दहलवी ने लिखा है नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है माअज़ल्लाह। यह अक़ीदा का पूरी दुनिया में 1% देवबंदी भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस्माइल दहलवी के जो जानबूझ के सपोर्ट कर रहा है उसी को देवबंदी कहते हैं, और देवबंदी दुनिया में 1% होगा। तो इसी तरह हर कुफरी अक़ीदे का उनके मौलवियों का अंधभक्त दुनिया में सिर्फ 1% 2% मिलते हैं। मुट्ठी भर देवबंदी, मुट्ठी भर अहले हदीस, शिया, कादियानी, बोहरी, ये सब मुट्ठी भर है, और 80% कलमा पढ़ने वाले आज भी सवाद आज़म अहले सुन्नत है। और अहले सुन्नत से जो कट गया,
الگ ہو گیا وہی فرقہ پرست ہے، وہی فرقہ واریت اور تکفیری سوچ کا ہے، وہی بریلویوں کو بلا وجہ قبر پجوا، مشرک، بدعتی یہ سب کہتے ہیں، حالانکہ ہم کسی قبر کو پوجتے نہیں، تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ اللہ فرماتا ہے جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، وہ اس کے دل کا تقوی ہے۔ تو شعائر اللہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی ہر نشانی شعائر اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام تھوڑی دیر بیٹھے، وہ جگہ کو اللہ قرآن میں شعائر اللہ فرمایا، تو اس وجہ سے ہم شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اور اسی تعظیم کو یہ لوگ انکار کر کے پوجا کہتے ہیں۔ پوجا الگ چیز ہوتا ہے، تعظیم الگ چیز ہے، اور تعظیم میں جو جائز جتنی صورتیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں غور سے سنیے، جائز جتنے بھی صورتیں ہیں، جتنے بھی جائز کی شکلیں ہیں، وہ سب ہم اپناتے ہیں، اور جو ناجائز اپناتے ہیں جاہل عوام، ان سے ہم بیزار ہیں۔ ناجائز طریقہ پر ہم تعظیم نہیں کرتے، جائز طریقہ پر تعظیم کرتے ہیں، اور یہ تعظیم پوجا نہیں ہے۔ بڑوں کی تعظیم کرنا، تو بڑوں کی تعظیم کو کیا بڑوں کا پوجا کہیں گے؟ ماں کی تعظیم کرنا، باپ کی تعظیم کرنا، استاد کی تعظیم کرنا، تو یہ تعظیم اللہ کا حکم ہے۔ تعظیم الگ چیز ہے، پوجا الگ چیز ہے۔ تو دیوبندی تعظیم کو پوجا کہتے ہیں، اور پوجا کہہ کر ہم لوگوں کو معاذ اللہ مشرک بدعتی کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں تکفیری سوچ۔ اور ہم نے جو علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ دیا، یہ کہتے دیندار، نمازی، دین کا کام کرنے والے، ارے دین کا کام نہیں کرے تم علماء دیوبند کے کفر پھیلا رہے ہو، اس لیے ہم تم کو جو کافر کہتے ہیں دلیل کے ساتھ کہتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے جب بندہ دوسرے کو کافر کہتا ہے، اور اگر کہنے والا جس کو کافر کہا گیا وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو ہمارا کنفرم ہے کہ علماء دیوبند کافر ہے، علماء دیوبند کے کفر ثابت شدہ ہے، اس وجہ سے ہمارے اوپر کفر نہیں پلٹے گا، کیونکہ علماء دیوبند کے کفر روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیوبندی خبیثوں کی شر سے تمام امت کی حفاظت فرمائے۔ اس دیوبندی خبیث کو سبھی سنی حضرات کال کرے اور اس کو اوقات بتائے اور اس کو چیلنج کرے، اگر تیری ماں نیک ہے، تیرے باپ اگر ایک ہے تو بات کر جلال الدین کے ساتھ، 2 منٹ طے کر کے بات کر، ہر چیز ثبوت کے ساتھ ثابت کرے گا جلال الدین چشتی انشاءاللہ۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔